Hello students, once again welcome to the lecture of topic vector for MHTCET, and this is my third lecture. In first two lectures we have seen the vectors. In the first part we have introduced the vectors, addition, subtraction, scalar multiplication and types of vectors वो हमने देखे. Now in the second lecture we have seen the collinear and coplanar vectors and the condition for collinear and coplanar, that is linearly dependent and linearly independent vectors. And this is the third lecture of topic vector, and this lecture is also going to be very important. So students, see the first point of the lecture number 3 of the topic vector. So first point which we are going to see is vector in two dimensions. वेक्टर इन टू डायमेंशंस. तो हमने जैसे 2D का पार्ट देखा है. इन द 2D देयर आर टू एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो उसी 2D में हम एक वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं. किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसा लिखा जा सकता है इन द वेक्टर, दैट इज द वेक्टर इन two dimensions. So here this is 2D, that is x axis, and y axis, this is origin. ये सब आपको पता है. So this is negative x axis and this is negative y axis, y dash x dash, you know very well. And now if there is a point x comma y in this xy plane, that is in the first quadrant, and we have to define the position vector of this point. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? So here to find the position vector of this point P, let this is the point P whose coordinates are x comma y. So if we draw the perpendicular from this point P on y axis, सभी को पता है this vertical distance is y and this horizontal distance is x. So if PM perpendicular to x axis, OM is x and PM is y. Now we have to find the position vector of this point P. तो उसके लिए we take the unit vector along x axis as I bar. I bar यानी उसे हम I cap भी लिख सकते हैं. I cap is also unit vector. I cap and I bar is same, तो हम I bar ही लिखेंगे. So this is unit vector along x axis and unit vector along y axis is j bar. In 3D अभी हम लेंगे. In 3D there are 3 unit vectors ijk along x axis, y axis and z axis. So this is the unit vector I bar on x axis and unit vector j bar on y axis. Now I have to find the position vector of point P with respect to origin O. पोजीशन वेक्टर मैंने बोला था आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, अगर कोई पॉइंट A है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज द वेक्टर OA बार. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O is the vector OA bar and that is equal to small a bar. So similarly I have to find the position vector of this point P whose coordinates are x comma y. So I will join this point P with this point O, and now this becomes the position vector of point P with respect to origin O. So I have to write the vector OP bar. This is the position vector of point P with respect to origin O. So by triangle law we can see that OP vector can be written as OM vector plus MP vector. By triangle law of addition of vectors, OP vector is OM vector plus MP vector. OM plus MP, MM cancel, OP vector, triangle law of addition of vectors. तो अब यहाँ पे देखिए OM वेक्टर मुझे लिखने का है. लेंथ ऑफ OM यानी मैग्नीट्यूड ऑफ OM वेक्टर. अगर मैं OM को वेक्टर कंसिडर करता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ OM वेक्टर इज x. OM की लेंथ x है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ x.
एंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ एम वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ एम वेक्टर इज आई बार। अब देखिए मैंने यूनिट वेक्टर आपको डिफाइन किया था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप अपॉन ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ओके, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए इज ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिफाइन करते हैं तो वी गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सो नाउ हियर दिस इज द OM vector and we have to write the OM vector now whose magnitude is x, So here now this vector A can be written as mod of A vector into A cap। किसी भी वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब मुझे लिखने का है ओ एम वेक्टर। सो ओ एम वेक्टर का पहले मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड, फर्स्ट आई विल राइट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका x। अब देखिए अब मुझे लिखने का है क्या, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ एम दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ओ एम वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो सेम है। सो दैट यूनिट वेक्टर इज व्हाट, आई कैप। सो दिस इज द वेक्टर x इंटू आई बार, ओ एम वेक्टर। अब मुझे लिखने का है एम पी वेक्टर। सो सियर दिस डिस्टेंस इज y। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ एंड दिस इफ दिस पॉइंट इज n, आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस। सो इफ दिस डिस्टेंस इज y, दिस ओ एन डिस्टेंस इज ऑल्सो y। सो कैन आई राइट एम पी वेक्टर एज ओ एन वेक्टर? Can I write MP vector as ON vector? Because length of PM is y, length of ON is also y, their magnitudes are same, their direction is also same. So these are equal vectors. The vectors whose magnitude and direction is same is called as unit vector. So I can replace MP vector by ON vector. Are you getting or not? These are equal vectors. MP vector and ON vector are equal, their magnitude and direction is same. Now see here, how can I write the vector ON bar? So ON bar vector मुझे लिखने का है तो पहले मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। सो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, y। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ON इज y। सो ON वेक्टर इज मैग्नीट्यूड है उसका y इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ON वेक्टर क्या है, j बार। ओके, so this becomes the vector OP bar. So this is the position vector of any point P x comma y in 2D. So this is the resolution of vector in 2 dimensions. Okay, तो इस तरह से 2D में कोई भी पॉइंट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का है, यम पॉइंट का। तो यम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। So I can write the vector OM as x into I vector. If suppose in here is the any point A whose coordinates are -2, 3, तो इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखूंगा मैं, OA वेक्टर इज x, y है तो xi प्लस yj, -2, 3 तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, -2i प्लस 3j। So this is the position vector of any point in 2 dimensions. But now we are interested a vector in 3 dimensions. We are interested in a vector in 3 dimensions. That is also important. So before we enter a vector in 3 dimensions, तो पहले हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम उसे सीखेंगे। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सभी को पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ओरिजिन, ये सब आपको पता है। सो वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। वी हैव टू डिफाइन अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। तो उसके पहले हम
देखेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम? ओके, सो शेयर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल, उसे हम शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो पहले सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले हम समझा लेते हैं। अगर पॉइंट प्लेन में है, अगर पॉइंट प्लेन में है तो उस पॉइंट की पोजीशन हम फिक्स करते हैं बाय टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। सो दिस पॉइंट ए इज एट दिस डिस्टेंस एंड एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई। पॉइंट अगर प्लेन में है तो 2 एक्सिस से काम चल जाता है, लेकिन पॉइंट अगर स्पेस में है, दिस इज द स्पेस। नाउ सपोज दिस टिप ऑफ माई पेन इज अ पॉइंट इन द स्पेस, तो इसकी पॉइंट मुझे, इस पॉइंट की पोजीशन मुझे किस तरह से फिक्स करती आनी चाहिए। सो फॉर दैट आई रिक्वायर 3 एक्सिस। मुझे कितने एक्सिस लेने पड़ेंगे? 3 एक्सिस लेने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो शेयर, तो उसे लिए मैं आपको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं आप भी देखें। शेयर, फर्स्ट आई विल ड्रॉ दिस स्क्वायर, उसके पीछे मैंने एक स्क्वायर निकाला। ओके, बिफोर दैट 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस किस तरह से लेने के हैं ये देखिए। सी हियर, ये हमें बाद में देखने का है, वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। फर्स्ट वी विल सी द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो उसमें 2D में जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, 3D में 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये आपको बाजू में दिख रहा है वो स्पेस है। व्हाट इज़ दैट? स्पेस, वो स्पेस है। तो इस स्पेस में अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मुझे पोजीशन फिक्स करने की है। तो उसकी पोजीशन फिक्स करने की यानी बताने का है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। अब इससे 3 प्लेन बनते हैं, ए एक्स वाई प्लेन, ए वाई जेड प्लेन, ए एक्स जेड प्लेन। तो इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना है, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये सब डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द पॉइंट P। अब 2D में 2 ही कोऑर्डिनेट है, तो 3D में 3 कोऑर्डिनेट हो गए, 3 एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट P है इन द स्पेस एक्स वाई जेड, तो इस पॉइंट के डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से और ओरिजिन से। 7 डिस्टेंसेस वी हैव टू फाइंड। तो अब मैं इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से कंप्लीट करता हूँ। दीज आर द 2 स्क्वायर्स, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ। एक्सटेंड दिस, दिस एंड दिस, this is this and this is this, this is this, this is this। क्या समझे? This is x axis, this is y axis and this is z axis। ये मेरा x y प्लेन, this is y z प्लेन, this is x z प्लेन। अब ये जो पॉइंट है, see this point, इस पॉइंट को देखिए, this point is in the space, दिस पॉइंट इज इन द स्पेस, यहाँ पे हवा में, दिस पॉइंट इज इन द स्पेस। अब इसके सारे डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन से, ये डिस्टेंस है वाई जेड प्लेन से, ये डिस्टेंस देखिए, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। फिर ये डिस्टेंस ओरिजिन से, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से क्या क्या डिस्टेंस हो गए। सो फॉर दैट
I will take the coordinates of this point P as x, y, z. So let this point has coordinates x, y, z. तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 2D में क्या होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, सेम वही कंसेप्ट है, थोड़ा ज़्यादा सोचने का है क्योंकि एक एक्सिस बढ़ गया है अपना z एक्सिस। ओके, 2D में आप देखते हैं x एक्सिस, y एक्सिस। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस x होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस y होता है। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स आर x, y। लेकिन 3D में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन, x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें छोटे छोटे सवाल बनते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y z फ्रॉम yz प्लेन। अब जब भी मैं डिस्टेंस लिखूँगा ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फिक्स होता है। तो हमेशा परपेंडिकुलर 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 लिखने की ज़रूरत नहीं, डिस्टेंस यानी आप समझ लेना दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब मैं इसको एज अ फॉर्मूला मुझे लिखने का है, क्योंकि सभी प्लेन से मुझे डिस्टेंस लिखने के हैं। प्लीज़ नोट, प्लीज़ नोट, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। So distance of point p x y z from y z plane is equal to x coordinate, या x coordinate is distance of the point from y z plane। तो x coordinate क्या है, ये हमारा y z plane है, ये y z plane। अब इसे देखिए, दिस इज द y z plane, दिस इज द y z plane, ये y z plane है, ये वाई जेड, दिस इज द होल वाई जेड प्लेन। अब इस वाई जेड प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, एक्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इतना। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स। तो अब मैं लिखता हूँ एज अ फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला इसे किस तरह से नोट करने का है, यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड from first yz plane is this, from xz plane is this, from xy plane is this। ओके, सो अब मुझे पता चल गया है पॉइंट P अगर स्पेस में है तो उसका yz प्लेन से डिस्टेंस उसके x कोऑर्डिनेट कितना होता है, बट द x कोऑर्डिनेट में बी पॉजिटिव में बी निगेटिव। क्या समझे, वन मोर पॉइंट सी हियर। अब ऑक्टेंट्स देखते हैं, ये तो मेरा पॉजिटिव ऑक्टेंट है, जैसे 2D में क्वाड्रेंट होते हैं वैसे 3D में ऑक्टेंट होते हैं, शेयर। नाउ इसे थोड़ा बाजू में रहने दो, पहले ये देख लो, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये है निगेटिव वाई एक्सिस, ये है निगेटिव जेड एक्सिस। अब देखो 2D में क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 3D में क्वाड्रेंट नहीं भैया, ऑक्टेंट बनते हैं। कौन से ऑक्टेंट बनेंगे, अब जैसे भी मैं इस रूम में लेक्चर ले रहा हूँ, सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ ऑक्टेंट, दिस इज़ वन टाइप ऑफ ऑक्टेंट। तो ये पहला ऑक्टेंट है, ये देखिए ओरिजिन ओ एक्स वाई जेड, ये एक ऑक्टेंट है ओ एक्स वाई जेड। इसके पीछे का ऑक्टेंट, उसके पीछे की रूम ओ एक्स वाई डैश जेड, इसके पीछे की या इसके अपोजिट ओ एक्स डैश वाई डैश जेड,
ये ऑक्टेंट, इस ऑक्टेंट का नाम क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड ओ ऑक्टेंट। तो ऊपर के कितने ऑक्टेंट हो गए रिलेटेड टू पॉजिटिव जेड एक्सिस, 4 ऑक्टेंट ऊपर के, और उसके नीचे सेम फिर से 4 ऑक्टेंट। सो टोटल कितने ऑक्टेंट्स होंगे, ऑक्टेंट्स, ओ सी टी ए एन टी एस ऑक्टेंट्स, टोटल देयर आर 8 ऑक्टेंट्स। तो ऑक्टेंट्स में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर कोई ऑक्टेंट में होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी वैसे होंगे। 2D में देखिए, 2D में क्या होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। 3D में अब ऑक्टेंट देखिए कैसे बनेंगे, सी द ऑक्टेंट्स एंड देयर साइंस। अब इसे थोड़ा बाजू में रहना, पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं फिर से यहाँ पे आपको पूरा ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा लेता हूँ। सो सी फर्स्ट हियर द ऑक्टेंट्स राइट। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z है तो उसके साइन कैसे होंगे। शेयर फर्स्ट ऑक्टेंट इज पॉजिटिव ऑक्टेंट, एक्स वाई जेड ऑक्टेंट, एक्स वाई जेड ये ऑक्टेंट, या ऐसा भी लिख सकते हैं ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट। 1 मिनट, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ये ओ एक्स वाई जेड पॉजिटिव ऑक्टेंट है, तीनों एक्सेस पॉजिटिव है। सो एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस इज पॉजिटिव, जेड एक्सिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी उस पर कोऑर्डिनेट्स ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस प्लस प्लस, तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, इसके पीछे का ये क्वाड्रेंट ले लो, इसका नाम बोलो ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड। नाउ इसके पीछे का ऑक्टेंट बोलो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। अब इस ऑक्टेंट का नाम बोलो ओ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई जेड राइट। ये ऊपर के 4 ऑक्टेंट है, ये रिलेटेड टू पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इस ऑक्टेंट में यानी वो रिलेटेड स्पेस में जो कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस प्लस। इस ऑक्टेंट में अगर पॉइंट है तो प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस। इस ऑक्टेंट में पॉइंट है तो माइनस प्लस प्लस। तो ये ऊपर के 4 ऑक्टेंट है। उसी तरह से नीचे के 4 ऑक्टेंट हो जाएंगे। टोटल ऑक्टेंट्स कितने हो गए 8 ऑक्टेंट्स। तो उसके साइन कभी प्लस कभी माइनस हो सकते हैं। तो ये जो डैश है, डैश रहा तो माइनस, ये डैश रहा तो माइनस। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला ऑक्टेंट, ये नीचे वाला ऑक्टेंट एक ही लिख के दिखाता हूँ, ओ एक्स वाई जेड डैश। अब इस ऑक्टेंट में यानी ये पॉजिटिव ऑक्टेंट के नीचे वाला जो ऑक्टेंट है वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए पॉइंट के, प्लस प्लस माइनस राइट। तो इस तरह से 3D में ऑक्टेंट होते हैं, 2D में क्वाड्रेंट होते हैं 4, 3D में ऑक्टेंट होते हैं 8। सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑक्टेंट्स। नाउ वी विल कम टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके। सो हियर अगर किसी ने पूछ लिया कि पॉइंट -5 1 -3 किस ऑक्टेंट में होगा, ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में होगा, तो ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में होगा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। दिस पॉइंट लाइज इन दिस ऑक्टेंट ओके। सो हियर वी हैव टू सी द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम थे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन ओके। सो हियर तो हमने पहले देखा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम द वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन पॉइंट पी किसी भी ऑक्टेंट में हो सकता है। सो दैट डिस्टेंस वी हैव टू टेक पॉजिटिव, सो इट इज मॉड ऑफ एक्स। सिमिलरली अब वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस अगर x होगा तो एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा y, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कितना होगा z
ओके, सो शेयर ये डिस्टेंस x है वाई जेड प्लेन से। अब एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस y कैसा होगा? अब देखिए एक्स जेड प्लेन, ये डॉटेड कर देता हूँ मैं। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये कौन सा प्लेन है? दिस प्लेन इज एक्स जेड प्लेन। तो इसका ये डिस्टेंस कितना होगा? y। ये डिस्टेंस कितना होगा? y। ओके, ये सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पे एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन ये नीचे, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ओके, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस, ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? जेड। तो अगर ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब एक्स वाई जेड होते हैं, तब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड। ओके, सो इफ अगर आई हैव द पॉइंट p -2 -3 4, तो इस पॉइंट का मुझे एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा एक्स जेड प्लेन से? तो एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना होता है? y। सो मॉड ऑफ y, सो मॉड ऑफ -3, तो कितना होगा? 3। इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? सो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होता है? मॉड ऑफ z। सो मॉड ऑफ z कितना है? 4, तो डिस्टेंस कितना होगा? 4। तो इस तरह से आप पॉइंट के एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंसेस लिख सकते हैं। नाउ शेयर, अब इसी का यूज़ करके यहाँ के पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, किस किस पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो शेयर, दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस। अब इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एक्स वाई जेड यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब मुझे लिखने का है एक्स कोऑर्डिनेट, तो उस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट लिखने का है, तो मुझे उस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, अब देखिए वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस ए एक्स है, तो ए भी डिस्टेंस एक्स होगा, ए भी डिस्टेंस एक्स होगा, एक्स एक्स एक्स, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। अब मुझे लिखने का है इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन से इसका डिस्टेंस क्या होगा? एक्स जेड प्लेन तो यही है, ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे ही है, यहाँ पे है कॉर्नर पे। अब देखिए ये 3D बना दिया मैंने, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से और इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? 0। दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ द प्लेन्स, दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ द प्लेन्स। तो इस पॉइंट ए का एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस 0 है, इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज ऑल्सो 0। एक्स वाई प्लेन पे है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इस तरह से एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x axis has coordinates x 0 0. Similarly, any point on y axis has coordinates 0 y 0. Any point on z axis has coordinates 0 0 z. तो x एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, y एक्सिस पे x एंड z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, z एक्सिस पे x एंड y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब बचे 3 पॉइंट्स। नाउ दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज P, let this point is Q and this point is R. अब ये पॉइंट P एक्स वाई प्लेन पे है, दिस पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन, दिस पॉइंट इज इन वाई जेड प्लेन एंड दिस पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन। तो अब मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने के हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस पॉइंट का मुझे अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखने का है, if I have to write the x coordinate, again x coordinate is distance of the point from y z plane, तो इस पॉइंट का y z प्लेन से ये डिस्टेंस, सो दिस इज दिस इक्वल टू दिस, तो ये x है, ये कितना है? x। देखिए दिस इक्वल टू दिस, तो x है। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन से इसका डिस्टेंस, अब ये देखिए दिस, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होगा? दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो कितना है? y।
अब इस पॉइंट का मुझे जेड कोऑर्डिनेट लिखने का है, तो जेड कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अरे भाई ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे ही जाके बैठा है। अब मेरे हाथ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का मेरे हाथ से डिस्टेंस कितना होगा, 0। सो दैट डिस्टेंस इज 0। तो एक्स वाई प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, जेड कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं, दिस पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, वाई जेड। एक्स वाई प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, जेड। तो वाई जेड प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 वाई जेड। एक्स वाई प्लेन पे जेड, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, एक्स 0 जेड। देखिए एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड इन द एक्स जेड प्लेन वाई कोऑर्डिनेट 0। सभी पॉइंट्स क्लियर। सो अब मुझे ये पता चल गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑल द 3 प्लेन्स। अब देखते हैं इन तीनों, इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम first x axis is from y axis is and third from z axis is। अब ये मेरा पॉइंट पी स्पेस में है, तो उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। सो वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस। सो दिस इज़ माय पॉइंट पी और ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। ओके, सो हियर दिस इज द पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ये वाई है। अब इस पॉइंट पी का मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट। अब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, नाउ वी नो दिस डिस्टेंस इज वाई, ये डिस्टेंस कितना है, y है। और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, ये डिस्टेंस कितना है, z है। राइट एंगल दिख रहा है, आर यू एबल टू सी द राइट एंगल है मेरा पॉइंट P। ये P डबल हो गया, इसको कुछ तो भी ले लेते हैं, कुछ तो भी अलग ले लेते हैं, C P C और A दिस PC कितना है, Z। ये राइट एंगल, ये कितना है, y। तो ये पाइथागोरस से क्या बनेगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So distance of point x, y, z from x axis is square root of y square plus z square। अब बाकी के डिस्टेंस आप इजीली लिख सकते हैं। So what will be the distance of this point from y axis, root of x square plus z square, and what will be the distance of this point from z axis, that is root of x square plus y square। तो इस तरह से आप पॉइंट के एक्सिस से और तीनों प्लेन से डिस्टेंस लिख सकते हैं। अब और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता चल गए। ओके, अब सपोज फॉर दिस हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 3 2। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 9 + 4 कितना आएगा, 13। What will be the distance of this point from y axis, that is root of x square plus z square, -1 square is 1 + 4 कितना आ गया, रूट ऑफ 5। What will be the distance of this point from z axis, so z axis से डिस्टेंस कितना होता है, रूट ऑफ x square plus y square, so it is 1 + 9 कितना आ गया, रूट ऑफ 10। ओके, और ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन। और किस प्लेन पे कौन से कोऑर्डिनेट्स 0 होते, तो यहाँ से मैं इस तरह से ध्यान में रख सकता हूँ। अगर पॉइंट स्पेस में है तो कोई कोऑर्डिनेट 0 नहीं, नो सिंगल कोऑर्डिनेट इज 0। एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता है स्पेस में है। तो प्लेन पे है तो एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 0 0। पॉइंट अगर एक्सिस पे है तो दो कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, 0 0 0 0 0 0। ओके, सो राइट ऑल दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पॉइंट के आपको डिस्टेंस पूछते हैं तो दीज फार्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज
टोटल 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, ऊपर के 4 नीचे के 4, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेंट उसके साइन होते हैं प्लस माइनस, वो मैंने आपको समझाया। एंड दिस इज़ द टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ जैसे मैंने स्टार्ट किया था, वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। नाउ आई हैव टू डिफाइन वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशंस, 3D position vector of a point in 3 dimensions. So here position vector of a point in 3 dimensions, या उसे लिखता हूँ मैं वेक्टर इन 3D यानी 3 डायमेंशंस, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे लिखने का है। क्या होगा, 2D में हमने देखा xi प्लस yj, अब 3D में जेड एक्सिस लग गया है तो उसके आगे कुछ तो भी लगेगा, xi प्लस yj प्लस जेड के, लेकिन कैसा लगेगा, क्यों लगेगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए ये मेरे फिर से 3 एक्सेस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये मेरा ही ओरिजिन, दिस इज़ द पॉइंट P इन द स्पेस, और उसके कोऑर्डिनेट्स x y z यही है ये पॉइंट। अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का है, यानी OP वेक्टर। आई हैव टू फाइंड द OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, लेकिन इन 3D। ओके, सो आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन XY प्लेन। ये जो परपेंडिकुलर डाला है XY प्लेन, तो उसका डिस्टेंस कितना है, Z। सो दिस डिस्टेंस इज Z। ओके, अब फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर आई विल ड्रॉ अगेन अ परपेंडिकुलर, इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का है। सो OP वेक्टर मुझे लिखने का है। लेट दिस इज द पॉइंट M। अब मैं इस OM को ज्वाइन करता हूँ। अब देखिए ये स्पेस में यानी प्लेन पे पॉइंट है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब यहाँ से फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मुझे लिखने का है OP वेक्टर। मुझे क्या लिखने का है, OP वेक्टर। अब OP वेक्टर को मैं ट्रायंगल लॉ से किस तरह OP वेक्टर तक पहुंच सकता हूं, O से स्टार्ट करूंगा। लेट दिस पॉइंट इज N, तो ON वेक्टर लिख लेता हूं पहले, ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर, NM वेक्टर प्लस, अब इसको कुछ तो भी Q पॉइंट, MQ वेक्टर, सॉरी MP वेक्टर। आर यू गेटिंग और नॉट, ON प्लस NM प्लस MP। अब देखिए NN कैंसल OM, ये दोनों की सम क्या हो गई, OM प्लस, अब ये MP, MM कैंसल, आ गया OP, तो OP को लिख सकता हूँ मैं ON प्लस NM प्लस MP। अब ON वेक्टर देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z है, तो इस पॉइंट का ये डिस्टेंस ON, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इतना है। सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम XZ प्लेन इज y, सो दिस इज ऑल्सो y। एंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस क्या है, I, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस क्या है, J, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस क्या है, Z। तो ये मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है y इंटू यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज दिस बाय दिस, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो मुझे लिखने का है वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है y इंटू यूनिट वेक्टर j, तो ये yj हो गया। प्लस अब मुझे लिखने का है NM वेक्टर, तो NM वेक्टर यानी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन, इस पॉइंट का YZ प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, x। अब इसका मैग्नीट्यूड, NM का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, x, लेकिन NM वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज सेम, तो ये भी डिस्टेंस x होगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है, I, मैग्नीट्यूड कितना है x, तो वेक्टर क्या बनेगा, दिस एंड दिस इज सेम, x इंटू आई बार।
प्लस अब मुझे लिखने का है MP वेक्टर, तो ये MP वेक्टर है, सपोज दिस पॉइंट इज M वर्टिकल, तो ये MP और ये OC सेम है, तो इसका डिस्टेंस Z है, ये भी Z है, तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो गया Z, मैग्नीट्यूड कितना हो गया Z प्लस यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वर्टिकल वाला Z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यूनिट वेक्टर क्या है K बार। ओके, तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x y z है तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा xi प्लस yj प्लस zk, xi OP वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk, राइट। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सपोज -3 5 7 है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i j के ज्वाइन कर दो भाई, सिंपल है, -3i प्लस 5j प्लस 7k, राइट। इफ एनी पॉइंट q इज देयर whose coordinates are -2 3 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा -2i प्लस 3j प्लस 0k प्लस 0k। अब इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह से हम 3D में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, अब ये y है ये x है, अब यहाँ पे राइट एंगल बना है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये y तो ये हाइपोटेनियस, इसका डिस्टेंस कितना होगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है z, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। फिर से देखिए OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर पर पाइथागोरस। अब OM की लेंथ है रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस MP कितना है z, तो ये जेड स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ OP इज x स्क्वायर, सॉरी दिस इज रूट ऑफ x वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज z। तो OP का मैग्नीट्यूड लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, सो इफ पॉइंट पोजीशन वेक्टर अगर ऐसा दिखता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो दिस वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन द स्पेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब अगर स्पेस में 2 पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर, 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा लिखेंगे। इफ आई हैव द 2 पॉइंट्स A and B in the space and I have to write the position vector of that point, I have to write the position vector of that point. So here I have these 2 points. First point A x1 y1 z1 and second point x2 y2 z2. So these are the 2 points in the space and I have to write the vector AB vector. तो आपको पोजीशन वेक्टर मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको पोजीशन वेक्टर में किस तरह से लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो ये मेरा पॉइंट B है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB बार यानी B बार, ये क्या होगा x2i प्लस y2j प्लस z2 माइनस A वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, A वेक्टर क्या होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड नाउ द वेक्टर AB बिकम्स x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। So if the 2 points are there in the space A and B, then position vector of point AB can be written like this. If
A is the point 2 minus 3 4, B is the point 5 minus 1 minus 1. Position vector of यानी AB vector in terms of ijk x2 minus x1 5 minus 2 3, so it becomes 3i minus 1 minus minus 3 यानी 3 minus 1 2 2j minus 1 minus 4 minus 5 एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25. सो इट इज 13 प्लस 25 रूट ऑफ कितना होगा 38. 13 प्लस 25 रूट ऑफ 38. ओके, तो इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं. दिस आर द 2 पॉइंट्स. ये उसका पोजीशन वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर इन द 2 डायमेंशंस. ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हैं. इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप प्लीज़ नोट कर लीजिए इन द नोटबुक. एंड द इम्पॉर्टेंट इज द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑल द 3 प्लेन्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस. सो दिस वाज द टोटल पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, अब तक हमने 3 लेक्चर, अब एक 3rd लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ है. उसमें काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कंप्लीट करके दिया है. नाउ वी विल, अभी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं लेंगे, पहले इस पार्ट के प्रॉब्लम्स हम कुछ सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ परफेक्शन लाएंगे. फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो देखेंगे. So in the next lecture we will start the problems on the basic addition of vectors. स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या ये कोलिनियर कोप्लेनर है या ये पॉइंट है, इस पे हम प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे. सो ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.